Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. Hope everyone is doing great as always. I'm also doing great. So let's get started with today's class without any further delay. I'm your mathematics professor Lalit Rankawat. I heartily welcome you in our second class of parabola. Okay, I assume you have seen the first video where we have discussed about the basics about conics, right? And yeah, let's continue further about the same and we'll get into depth about parabola. Okay, those who are joining for the very first time, I heartily welcome you in our on our channel. Okay, so this is me, this is you. Parabola second class, elements of conic, standard equations of parabola. Let's get started with the class, guys. Okay, so last class we discussed what actually is a conic, right? SP, PM, everything. I guess you remember that. Okay, just to brief you out, there is a fixed line. Fixed line is what we call as directrix. There is a fixed point is what we call as a focus. We name this as always S, and there is a moving point. This is P, and if I drop a perpendicular distance, this is M. So when we talk about PS PM, right, the ratio PS by PM is a constant which is nothing but E, and in case of parabola, which is what we're going to study today, is nothing but E is equal to 1. Okay, so we'll start with the standard parabola. Okay, what actually is a standard parabola and everything. So yes, let's get into depth of that. Okay, about the parabola and the things, right? So yeah, चलो start करते हैं. Fixed line parabola, parabola, parabola. Oh, ठीक है. Okay, so parabola, how does it look like? Okay, this is one point, this is another point, so on, collection of all such points. This is how a parabola will look like. Okay, अब इसके basics से हम चलेंगे. First case, parabola, right, E is equal to 1. Second case, h square is equal to AB. That complete equation you remember, right? Second degree equation. And SP by PM is equal to 1. है ना? Same thing, first and the third point. Okay, now let's see the general equation of parabola, and then I will tell you the standard equation of parabola. What does that mean? General equation of parabola है, ये क्या होता है? अभी समझेगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं सभी लोग. So this is Lx my plus n equal to 0. General point you can assume as any h comma k, and focus is a comma b. So let me write sp distance. Sp distance is root over h minus a square k minus b square. Let me write pm, perpendicular distance, mod lh plus mk plus n root over l square plus m square. And in parabola we know sp equal to pm. So sp square equal to pm square. So this is h minus a square plus k minus b whole square is equal to LH plus MK plus N. And standard equation very important everyone. ये याद रखनी है, चीज़ें easy रहेगी. Now replace H and K with X and Y. तो finally standard equation पे हम इसके बाद आएंगे. X minus A square plus Y minus B square is equal to E is 1. Okay, that's the reason. This is LX plus MY N whole square upon L square plus M square. We can multiply here. Okay. This is the standard general equation. Easy peasy lemon squeezy. Everyone with me? Yes, awesome guys. Now, just to moving towards standard equation, let me just give you one question. Question is, find equation of parabola. Find equation of parabola if focus S is equal to minus 1 comma minus 2 and directrix we have x minus 2y plus 3 equal to 0. So let's quickly draw the diagram. X minus 2y plus 3 equal to 0. अब फील आएगा ना, नॉर्मल पॉइंट कुछ भी मान लो h कॉमा के, एंड ये हमारा पॉइंट है माइनस 1 कॉमा माइनस 2. ठीक है, डायरेक्ट h कॉमा के मान लो या फिर x कॉमा y भी मान सकते हैं, सर सच कोई इश्यू नहीं है ना. डायरेक्ट कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो x कॉमा y मान लेते हैं, माइनस 1 कॉमा माइनस 2, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम. S P M, both the distance are same. ठीक है, चलो लिखें SP square is equal to PM square. SP square कितना होगा? X minus of minus 1 plus 1 square.
प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस x की जगह x ही रख दो, x माइनस 2y प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन L square is coefficient of x square which is 1 square plus minus 2 square which is 5. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 square plus 4 square is 5. 5 is multiplied here 5. चलो लिख लेते हैं x square 2x plus 1 y square 4y plus 4. ओपन किया और कुछ भी नहीं किया गाइस. दिस इज x square plus 4y square plus 9. a plus b plus c is a square b square c square. फिर दो का टर्म साथ में ले लो. माइनस 2 इंटू दिस 4xy. फिर इन दोनों को ले लेते हैं माइनस 6 इंटू 2 12 है ना. फिर 2 इंटू दिस 6x. सो क्या हो गया 5x स्क्वायर प्लस कितना आ गया ये 10x आ गया क्या. बढ़िया. 5y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 20x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 12yx 6x. सब उस तरफ में बेस्ड किया. फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 4x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. फिर xy टर्म यहाँ माइनस वहाँ जाके प्लस 4xy. अभी x 10x वहाँ जाके 6x वहाँ जाके प्लस 4x. यहाँ पे क्या हो जाएगा 20y और ये कितना 12y वहाँ जाके 32y. 5 and 20 25 माइनस 9 16 हो गया 16. दिस वुड बी आवर इक्वेशन. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो देख लो a कितना है a is 4 b is 1 a भी कितना आ गया 4 h कितना हो गया 2h is 4 h is 2 h स्क्वायर कितना आ गया 4 h स्क्वायर इज इक्वल टू ab. तो ये भी दिमाग लगा सकते हैं. ठीक है, इजी है ना. अभी तक हमने इन दिस नेक्स्ट 7 मिनट्स हमने बेसिक डिस्कस कर लिया. आगे चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन पे. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ओके, इसमें 4 इक्वेशन है. पहला वाला सबसे फेमस है, उसके बारे में हम इन डिटेल चीजें समझेंगे. देन विल सी सम टर्मिनोलॉजीज एज वेल. ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बता दूं कि ये मतलब बता दो. चलो पहले मैं मतलब बता देता हूँ. इसके पहले ये कर लेते हैं. एलिमेंट्स ऑफ अ कॉनिक. अब ये क्या है एलिमेंट्स ऑफ अ कॉनिक. तो देखो फर्स्ट 2-3 चीजें ध्यान रखनी है. एक हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट है. एंड ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे जिससे वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा. इस केस में 1 है. तो ये हो गया कर्व. 3 चीजें हमारे पास. क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स. इसको हम क्या बोलते हैं पहले सीख लेते हैं ना, बोलते हैं कि किसको क्या क्या है. फोकस, ये हमारा पैराबोला. ठीक है, बहुत बढ़िया. ये क्या है फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट है ये है कि नहीं. अरे भाई बोलो कि नहीं. दिस इज फिक्स लाइन. ठीक है, चलो बहुत सही. आगे बढ़ते हैं. अब क्या है ना, फर्स्ट डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. एक्सिस ऑफ कोनिक. पैराबोला कर लो, कोनिक कर लो, कुछ भी कर लो. ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस. ठीक है, कुछ नहीं है. स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू फोकस. फोकस से पास होने वाली 1000 इनगिनत लाइन है. ओके, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स. एक ही लाइन है, दिख रही है, ये हो गई. ओह, दिस इज 90. यस, इसको क्या बोल दिया, एक्सिस. आसान है कि नहीं. अरे बोलो गाइस, बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा. चलिए नेक्स्ट वर्टेक्स. वर्टेक्स मैं पढ़ देता हूँ फटाफट. ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक एंड द एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कोनिक. ठीक है, और वर्टाइसिस भी हो सकता है, एलिप्स होगा तो. ठीक है, so, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं. जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक. कोनिक यहां हम पैराबोला लिख लेते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला. आप कोनिक भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, सबके लिए सेम ही होगा. इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस. ये हो गया हमारा वर्टेक्स. पहले सीख लो कि क्या क्या है, ये इजी हो जाएगा, फिर बहुत आसान रहेगा ना. सब चीजें ये सब आगे यूज होने वाला. वर्टेक्स, फोकस, तो मतलब पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं आगे, है ना. चलो वर्टेक्स हो गया, बहुत ही बढ़िया. अब कुछ और अजीब सा आया नाम, देखते हैं क्या नाम कह रहे हैं. फोकल कॉर्ड. ओहो, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकस. ये कोई लिखने की दिक्कत है. कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस. कॉर्ड मतलब क्या होता है,
इस कर्व में कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लो एंड पास होनी चाहिए वहां से। ओके सॉरी गाइस, लेट्स कंटिन्यू दिस। ओके, फोकल कॉर्ड हो गया, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। मतलब अरे कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब क्या? कोई भी 2 पॉइंट होंगे कर्व में, उसको ज्वाइन करो। अरे अरे so see, if you join this two, these are chords. Now the chord which is passing through focus, है ना? ये पढ़ा होगा कुछ, मिरर जैसा याद आ रहा है? चलो उन सब पे भी जाएंगे नहीं। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, कुछ याद आ रहा है? छोड़ो, रहने देते हैं। ओके सो दिस इज एग्जाम्पल इज, एक मैं डायग्राम बना देता हूं, है ना? ये हो गई फोकल कॉर्ड। क्या है? कोई भी कॉर्ड कहां से पास होनी चाहिए? फोकस, है ना? इजी है, चलो बढ़िया, ग्रेट गाइस। अच्छा आगे है, ओहो अजीब सा और नाम है एक, डबल ऑर्डिनेट। डबल मतलब डबल और क्या? ऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट और क्या? ओके मैं समझाता हूँ। डबल ऑर्डिनेट, एनी कॉर्ड सॉरी a straight line drawn perpendicular to the axis and terminated at both the ends of the curve is a double ordinate। ओहो कुछ ज्यादा ही इंग्लिश लिखते, क्या है? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। एक तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये हमारा कर्व एक्सिस है, एक्सिस से परपेंडिकुलर, बहुत सारी लाइन होगी, बट इट शुड टर्मिनेट एट एंड पॉइंट्स ऑफ कर्व। तो ऐसे कितनी लाइन्स हो जाएंगी? इन्फिनाइट। ऑल दिस कर्व्स आर व्हाट वी कॉल इज डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर, ये लेंथ अगर ये एक्स कॉमा वाई है, ये मान लो ओरिजिन है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज वाई, दिस इज वाई, टोटल कितना हो गया? 2y। 2y मतलब डबल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब पता ही है सबको, ठीक है? वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो डबल वाई, है ना? डबल ऑर्डिनेट कुछ नहीं है। डबल ऑर्डिनेट क्या है? लाइन सेगमेंट, एक्चुअली तो लाइन सेगमेंट ही होता है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस whose endpoints terminate at nothing but the curve। ठीक है, तो वो कोई मतलब नहीं है, लिख लेते हैं जनरली। ये हो गई हमारी एक डबल ऑर्डिनेट, है ना? चलो समझ में आ रहा है? डबल ऑर्डिनेट हो गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है गाइस। ओके फिर आ जाते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये क्या कह रहे हैं? एक तो ब्लैक कलर में, हमारे पास ब्लैक पीपीटी में कलर कम यूज होते हैं, ठीक है? लेटेस्ट रेक्टम क्या पढ़ लेते हैं। द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। ओ मतलब ये क्या कह रहा है? ऐसा कह रहा है कि अच्छा बहुत सारी होगी ये परपेंडिकुलर, हाँ होगी। देयर वुड बी वन लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस, यस। सो पासिंग थ्रू फोकस एंड इट शुड बी डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मीन्स परपेंडिकुलर टू नथिंग बट आर क्या हो गया? एक्सिस। सो डबल ऑर्डिनेट थी पहली तो कॉर्ड, देखो यहां देखो क्या 3 चीज है। कॉर्ड मीन्स कैसे भी ज्वाइन कर लो, दिस इज कॉर्ड। नाउ chord only but perpendicular to axis, ये डबल ऑर्डिनेट। दिस इज chord, दिस इज डबल ऑर्डिनेट। फिर क्या हो गया? डबल ऑर्डिनेट बट पासिंग थ्रू फोकस, सो इट्स दैट फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड भी होगी, हाँ होगी। डबल ऑर्डिनेट भी होगी, हाँ होगी। लेटेस्ट रेक्टम भी होगी, हाँ होगी। लेटेस्ट रेक्टम क्या 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 अजीब सा नाम है, लेटेस्ट रेक्टम। डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। आ रहा है समझ में? फोकस से पास होने वाली, ठीक है? ये हो, यहां लिख देते हैं इसको लेटेस्ट रेक्टम। LR ललित रंगावत नहीं है, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है? चलो बढ़िया। ये 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखेंगे हम। ये हाफ एन आवर, ये भी 90 डिग्री, ठीक है? चलो बढ़िया, सही। आगे चलते हैं। अब क्या? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये भी हमें आई जाएगा अभी, जो हम आगे धीरे धीरे सीख लेंगे। चलो अब क्या सुन लेते हैं। इफ डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस एस इज टर्मिनेटेड बाय कोनिक एट 2 पॉइंट्स P एंड P डैश, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो P डैश, ओके? देन इट्स कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और सिंपली लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम मतलब लेंथ की हम बात कर रहे होंगे हमेशा, ओके? नाउ P डैश इज 2 टाइम्स SP का डबल हो जाएगा। SP इज नथिंग बट E टाइम्स, ठीक है? अभी वो ज्यादा हो जाएगा, वो रहने देते हैं, चलो ठीक है? तो बेसिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सेंटर, ओके? पैराबोला में सेंटर नहीं होता तो उसका भी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है? आगे तो बेसिक ये 5 चीजें पता होनी चाहिए, एक्सिस, वर्टेक्स, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, लेटेस्ट रेक्टम। रिवाइज कर लें, है ना? चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। क्या है? फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स, फास्ट एवरीवन, फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट, यस एवरीवन, मन में बोलना है, ऑनलाइन देख रहे हैं बट मन में बोलना है, फोकस, बहुत ही बढ़िया। दिस इज कर्व,
डायरेक्ट्रिक्स, फोकस को हम एस से लिखते हैं, बट ठीक है फोकस लिख देते हैं फटाफट. दिस इज और कर्व इज पैराबोला. नाउ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, यस क्या बोलते हैं, एक्सिस. बहुत बढ़िया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट वेयर द कर्व एंड द एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड वर्टेक्स. ओहो ग्रेट गाइस. नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, बहुत सही. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. वर्टेक्स इज क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट इट वुड बी कॉर्ड, फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड मीन्स एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, है ना, फोकस से पास होने वाली एनी कॉर्ड. ठीक है. फिर डबल ऑर्डिनेट. डबल ऑर्डिनेट मीन्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस. डबल ऑर्डिनेट. नाउ दैट डबल ऑर्डिनेट विच इज पासिंग थ्रू फोकस, उसको हमने क्या बोल दिया, लेटस रेक्टम. हो गया याद. अरे इजी है कि नहीं, बोलो गाइस. बहुत ही बढ़िया. तो हमने पहले ये सब बेसिक नामकरण कर लिया. ठीक है, ये देख लो. आगे बढ़ते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे चलते हैं. आ जाए. चलो ओके. ये सबसे सिंपलेस्ट है. ओके चलो. तभी क्या है, पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे. स्टार्ट राइटिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ना बहुत मस्त से सीखेंगे, टेंशन मत लो, बहुत मजा आएगा. हाँ, और भी कुछ छोटी डेफिनेशन में बताते रहूंगा. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. अब हम कर्व को बना देते हैं येलो कलर से. ओह, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज फोकस. नाउ बहुत ध्यान से समझेंगे. दिस इज आवर वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है. दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ए, and this distance is also a. मतलब distance between directrix and vertex, distance between focus and vertex is same. ये focus है, ये directrix हो गई. ठीक है, और बस ठीक है, आगे चलते हैं. इसको इन्होंने o से, ठीक है, उसे कुछ भी रिप्रेजेंट कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है. दिस इज ओरिजिन 0,0, ये डिस्टेंस a है. नाउ देर इज एनी जनरल पॉइंट. जनरल पॉइंट क्या है, x, y. Now this distance is a, this is a. Now this line is perpendicular to x-axis, parallel to y-axis. Any line parallel to y-axis, its equation is x is equal to something. X equal to something because it's passing through that point. Let's say if the line is passing through 2, x equal to 2, x equal to 3, x equal to -2, x equal to -3, है ना. This is passing, this distance is a, this coordinate is nothing but -a, 0. Focus is a, 0. So इसकी equation क्या होगी, x is equal to -a. बहुत बढ़िया. x इक्वल टू -a और x प्लस a इक्वल टू 0. दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स. ये क्या हो गया, फोकस. अभी हम इक्वेशन लिखना सीखते हैं. ठीक है, ध्यान से, एकदम ध्यान पूर्वक. फोकस गाइस. लेट्स हैव अ लुक हियर. ठीक है, दिस पॉइंट इज p, sp, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज m. ठीक है, आसान है. सबसे पहले sp स्क्वायर, sp by pm is equal to 1 for parabola. sp is equal to pm. sp square equal to pm. मैं थोड़ा अपने आप को इधर कर देता हूँ. ठीक है, ओके चलो. नाउ sp कैसे फाइंड करेंगे. sp is distance between them is x minus a square y minus 0 square is equal to pm. pm perpendicular distance from this. अब देखो ध्यान से क्या है, x plus a equal to 0. तो I'll substitute this point here. So it's x plus y तो है ही नहीं, 0y लिखेंगे, तो y है नहीं, तो y लिखने की जरूरत नहीं है. a अपॉन रूट ओवर होल स्क्वायर, है ना. रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1. कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 0. तो कोई पॉइंट ही नहीं है. अब ये कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर. अरे रुको तो सरी, प्लस y स्क्वायर रह गया. y स्क्वायर दिखा कि नहीं दिखा. दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 स्क्वायर 1, तो कोई मतलब नहीं है. x प्लस ए होल स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, 2x वहां चल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x. ओ, ये तो देखा होगा आपने, ये सुंदर सी इक्वेशन. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. इजी है कि नहीं, बोलो गाइस. y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज एन फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. अभी सब देखेंगे, सब याद हो जाएगा ना, थोड़ा पेशेंस रखना है. ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बढ़िया, थोड़ा समझ में आ रहा है. ओके, और इसमें हमें कुछ लिखने की तो कोई खास जरूरत है नहीं. अभी मैं सिर्फ इक्वेशन बताता हूं कैसे लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन दिस.
ओके अब इसमें और कुछ कुछ टर्म्स भी मैं बता देता हूँ. दिस इज व्हाट वी कॉल इज टेंजेंट एट वर्टेक्स. दिख रहा है? अरे दिस इज द कर्व, दिस इज योर वर्टेक्स, दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स. इक्वेशन इज वाई एक्सिस की इक्वेशन इज x इक्वल टू 0. ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? बढ़िया बढ़िया, सही है. टेंजेंट एट वर्टेक्स x इक्वल टू 0. ओके चलो इस सारे पॉइंट ही लिखा देता हूँ ना मैं इसमें, ये ज़्यादा सही रहेगा. ओके तो क्लियर हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो फर्स्ट वन, दिस इज द कर्व. जो कर्व में भी कुछ स्ट्रेट नहीं बन पाया ये, अब सही है. अब देखो, ठीक है, सब आप बताएंगे मुझे. एक एक चीज हम लिख लेते हैं. क्या है? वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस फिर क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स. ठीक है, फिर एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी लिख लेंगे हम. एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और फोकल डिस्टेंस. चलो सब कुछ, काफी चीजें सीख जाएंगे यार, है ना? सीख जाएंगे. कोई बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है. सबसे पहले वर्टेक्स इज एट 0,0, ये लिख लेते हैं 0,0. बहुत बढ़िया. फोकस इज a,0, a,0. दिस इज a, दिस इज a, दिस इज x प्लस a इक्वल टू 0, x प्लस a इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस a. दोनों याद रखना आपको. एक्सिस इज दिस विच इज x एक्सिस ओनली. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? y इक्वल टू 0. ठीक है, सेम ही चीज लिखे. आइदर x एक्सिस और यू कैन राइट y इक्वल टू 0. टेंजेंट एट वर्टेक्स, y एक्सिस और x इक्वल टू 0. नाउ एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये हम सीखते हैं. लेटस रेक्टम क्या होता है? देखो, दिस इज लेटस रेक्टम विच इज परपेंडिकुलर. ठीक है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज a. तो इसका कोऑर्डिनेट x, y इज a, y. अरे what is this distance? This is a and this is perpendicular, right? Okay, so I am calculating this point. What is this point? That is my question. Okay, so that is going to be x is a, y is square equal to 4x. See, this point is lying on the parabola, so it should satisfy that. So let me substitute x is a, y square equal to 4a square, y is plus minus 2a. Plus minus 2a means 2 points. This is a comma 2a, this is a comma minus 2a. ठीक है, a फोर्थ क्वाड्रेंट, y इज नेगेटिव, a 2a. सो पूछा है एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम. ये है लेटस रेक्टम, इसके एंड्स क्या है? a, 2a एंड a, माइनस 2a. इजी है. चलो बढ़िया, लिख लिया हमने ये पॉइंट. इसको कुछ भी नाम दे दो, p q डैश जो भी है. चलो a और b रख लेते हैं. a पॉइंट, b पॉइंट. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेंथ कितनी है? दिस इज y विच इज 2a. दिस लेंथ इज एवरीवन y, दिस इज 2a, दिस इज 2a. So this length is 4a. बहुत इंपॉर्टेंट, 4a. इजी है. नाउ फोकल डिस्टेंस क्या होता है? फोकल डिस्टेंस मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, समझेंगे हम ये फोकल डिस्टेंस क्या है. ये क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया. तो एक चीज और हमें समझ में आई, दैट बेसिक चीजें हम लिख लेते हैं. कंसिडर दिस पॉइंट इज d, दिस इज ओरिजिन, दिस इज s. d is nothing but foot of perpendicular at directrix. Foot of perpendicular at directrix मतलब क्या हुआ? ये फोकस है, यहां से अगर हम ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो जहां पे मीट करेगा वो हो गया d. ठीक है, तो उसमें कोई बहुत नई बात नहीं है. d के कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं माइनस a, 0. तो हम लिखेंगे DOS और लिख लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एट डायरेक्ट्रिक्स, कॉमा वर्टेक्स, कॉमा एस क्या हो गया? फोकस. ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे DOS. और ये समझ में आ गया तो हम डायरेक्टली लिख देंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ D एंड S, है ना? तो ये पूरा हमने लिख दिया. O क्या है? इसका मिड पॉइंट है. अरे A एंड A बराबर है, तो मिड पॉइंट है. ये दिख रहा है? दिख रहा है. चलो बहुत बढ़िया. एक और चीज इसी स्लाइड पे करना जरूरी है. y स्क्वायर इक्वल टू 4a. 4a इज LRX. LR मतलब लेटस रेक्टम, जिसको हम लिखते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. डायरेक्ट दिखना चाहिए. ओ अच्छा, वहां पे 4a था. हाँ 4a था, और क्या था? 4a दिखा? 4a. दिस इज 4a.
सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऐसे करके भी लिख सकते हैं ऐसे तो, और इसको भी अभी हम मॉडिफाई करेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया। अब फोकल डिस्टेंस क्या होता है? फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस of a point on parabola or generally to curve, distance of a point on parabola to focus, मतलब ये देखो, this is focus, normally let's say this is any point P, तो PS is focus, focal distance। अब इसकी हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखना, दिस पॉइंट इज x कॉमा वाई, कह सकता हूं मैं ये डिस्टेंस x है, करेक्ट, दिस डिस्टेंस इज a, करेक्ट। नाउ PS इज इक्वल टू PM बिकॉज इट्स अ पैराबोला, बोथ द डिस्टेंस आर इक्वल, यस। PM कितना है? PM इज दिस a प्लस x। देखो ध्यान से, इधर दिखाता हूं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। दिस इज a and this coordinate is x comma y, means this is x, this distance is y, this is x, this is a, total x plus a, x plus a, this is x plus a, this distance is also x plus a, making sense everyone? तो कितना हो गया? x plus a, बहुत ही ज़्यादा important, और मॉडुलस में रख दो ताकि नेगेटिव साइन ना हो, ठीक है। सो लिखाया तो नहीं है इन्होंने, फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस हाँ लिखा है x प्लस, वैसे तो नेगेटिव नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलो x प्लस ए, फोकल डिस्टेंस क्लियर है, फोकल डिस्टेंस मतलब समझ में आया, x प्लस ए, चलो सही है, ये स्टैंडर्ड हो गया है। एक क्वेश्चन कर लें कि फॉर्म्स देख लें, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। हाँ और एक और चीज़, सॉरी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मुझे क्या अभी याद आ रहा है कि ये भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं, मतलब बताना बहुत कुछ है बट टाइम के साथ बताएंगे। ए इज नथिंग बट डिस्टेंस, चलो यहां पे लिख दूं क्या मैं, ए इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ध्यान से सोचो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स कितना है, ए एंड ए 2a, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, ए, राइट। सो ए इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन focus and directrix, or you can say A is distance between focus and vertex, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे बहुत काम आएगी। वर्टेक्स और इसके बीच में डिस्टेंस A, और सिमिलरली A is also equal to perpendicular distance from, ये भी perpendicular distance है, perpendicular distance from vertex to directrix। अरे ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, तो ये A क्या है वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में ये था, फटाफट फाइंड करते हैं, सब कुछ फाइंड कर लो जो जो मन में आ रहा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड, जस्ट एक चीज़ बता दो, है ना, सॉरी, ओके, तो इसमें मैं बता देता हूँ, मैं खो गया, हाँ ये रहा, इसको ऐसे याद रख लो, y माइनस 0 स्क्वायर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इंटू x माइनस 0, ये क्या है 0,0, क्या है ये, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब वर्टेक्स। ये ऐसा क्यों देख रहे हैं आगे समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में शायद, अभी तो 28 मिनट तो हमने इसमें कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, एटलीस्ट वो बेसिक वाले तो तीनों कर लेंगे, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ए कितना हो गया। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ ए भी क्यों, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, LLR भी लिख लेते हैं उसको, LR भी लिख लो, कितना हो जाएगा, ये 4a होता है, 4a इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विच इज 12, सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 12, a is 4a is 12, a is 3, बहुत बढ़िया। सबसे पहले वर्टेक्स लिखते हैं, वर्टेक्स कहाँ पे है 0,0, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज फोकस, फोकस इज a,0, तो कितना हो गया 3,0, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स एवरीवन x प्लस a इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। और कुछ आ रहा है, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी हमने देखा, देखो फिर से देख लो, ये अगर a है a,2a, a, माइनस 2a, a,2a, a, माइनस 2a, a कितना हो गया 3, 3,6, 3, माइनस 6, बढ़िया। और y एक्सिस की इक्वेशन सेम है, वही x एक्सिस, ठीक है, एक्सिस की इक्वेशन x एक्सिस विच इज y इक्वल टू 0, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स इज x इक्वल टू 0, वो सब सेम ही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं।
चलो और कुछ रह गया, फोकल डिस्टेंस जनरली लिखना हो तो कोई भी पॉइंट के लिए फोकल डिस्टेंस हमारा हो गया x प्लस ए। कोई भी पॉइंट बोल देंगे 3,4 या जो भी है समथिंग 3,6 इज अ पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, चलो तो फोकल डिस्टेंस बता दो, तो ये हम बता देंगे। चलो हो गया ना, ये इजी है, ये बेसिक समझ में आया। अब हम अदर फॉर्म्स देखते हैं। अदर फॉर्म्स क्या है देखो, अब डायरेक्ट समझ में आएगा। और अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया इसमें हमने, यहां लिख देता हूं मैं, कुछ तो जोर से आ रहा मुझे, ओके लिखना है मुझे अभी ऐसा इसके लिए है ना, और कुछ नहीं। सो पैराबोला, ठीक है ध्यान से, पैराबोला ओपन्स इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेरिएबल। अरे ये क्या बोल दिया, बहुत बढ़िया चीज बोली। देखो वेरिएबल क्या है, एक्स साइन के साथ, पॉजिटिव एक्स। सो किस डायरेक्शन में खुल रहा है, पॉजिटिव एक्स। अच्छा हाँ, तो और देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं ना, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा ना, प्लीज ये काम चला लेना इसमें। मतलब वीडियो मुझे छोटे ही रखने हैं, बट डिटेल में भी तो समझाना है ना आपको, फिर फील नहीं आएगा तो मजा क्या। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अभी पैराबोला कहाँ पे ओपन होगा, -x। -x कहाँ पे होता है, ऐसा, ठीक है। और ये हमारी हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स अभी ये पॉइंट हो जाएगा -a,0, ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू a और x माइनस ए इक्वल टू 0। सेम डेरिवेशन वही है ना, डेरिवेशन एक कर लेते हैं हम तो और क्लियरिटी आएगी। ये हमारा क्या है s, ये हमारा p, ये क्या है परपेंडिकुलर m। आसान है कि नहीं, अरे बोलो, अरे गाइस बोलो, x, y, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस sp² इक्वल टू pm²। अभी हम ये डेराइव कर देते हैं ना फटाफट। ये कितना हो जाएगा, x माइनस ऑफ माइनस ए, x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0² इक्वल टू pm। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेशन क्या है, x माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ पे x रख देते हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन √1² प्लस y 0²। y है ही नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज x² प्लस 2ax प्लस a² प्लस y² इक्वल टू x² माइनस 2ax प्लस a² y² इक्वल टू ये 2x वहां जाके ओ -4x है ना। इजी है, सब लिख सकते हैं। अब सब कुछ लिख लें हम, वर्टेक्स जो भी इतनी देर से हम देख रहे हैं। तो पहले वर्टेक्स लिखो, वर्टेक्स क्या है 0,0। बहुत बढ़िया गाइस, फोकस फोकस a,0। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a और x माइनस ए इक्वल टू 0, दोनों याद रखो। फिर और भी कुछ था क्या, था कुछ तो था। ये हो गया हमारा वर्टेक्स 0,0, ये हो गया ये पॉइंट क्या हो जाएगा a,0, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना d, ठीक है। वो लिखने का कोई बहुत मतलब नहीं है। फिर लेटेस्ट सेक्टम के एंड्स क्या होंगे ना, हम थोड़ा सा खुद कॉमन सेंस लगाते हैं। ये क्या है a, ये हो जाएगा 2a, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा a,2a, ये पॉइंट भी हो जाएगा a,2a। नाउ जस्ट सी द साइन, थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ x माइनस y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में y है ना। तो कॉमन सेंस से भी जीत सकते हैं, -a,2a एंड -a,-2a। अच्छा लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ LR लेटेस्ट सेक्टम, वो तो सेम ही रहेगा शायद, कितना 2a + 2a 4 है, बहुत बढ़िया गाइस 4 है। अच्छा अब फोकाई क्या है, बहुत ही सही, क्या बोल दिया मैंने फोकल डिस्टेंस, फोकाई प्लूरल होता है, वो यहाँ पे नहीं आता है, इलिप्स में आएगा। फोकल डिस्टेंस क्या होगा ध्यान से, तो देखो अभी ये कौन जनरली पॉइंट है, ये डिस्टेंस है a, ये हो गया x, तो फोकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस a, ठीक है। चलो गाइस ये हो गया हमारा सेकंड वाला। इसमें हमने कुछ बहुत ज़्यादा तो चेंजेस नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस भी हो गया x प्लस a, मॉड्यूलस ले लो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए उस डिस्टेंस। अरे ये x है, ये है sp होता है ना फोकल डिस्टेंस, sp इक्वल टू pm, तो ये डिस्टेंस a है, ये x है, तो x प्लस a हो गया। x नेगेटिव हो सकता है जैसे -2 एंड ऑल, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो और कुछ बताना है इसमें, कुछ बताने लायक बच गया क्या हमारी लाइफ में, नहीं ठीक है ना। चलो ओके, अब एक चीज क्या ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है, क्वेश्चन अगर मैं बता दूं y² इक्वल टू -12x, a कितना है
4a-4 नहीं बोलेंगे हम। ध्यान से देखो 4a12 है तो एग्जैक्टली हमने नेगेटिव कंसिडर कर लिया है वहां पे। फोकस, सॉरी, -a,0 तो a हमारा 3 ही होगा, है ना। -4a इज इक्वल टू -12 कैंसिल होके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स हो जाएगा 0,0, फोकस कितना होगा -a,0 तो वो -3,0। डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और तो बस ठीक है, -a,2a तो a हमारा 3 है तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएंगे -3,6 -3,6, है ना। तो अब ये सब दिख रहा है सबको, बढ़िया फील आ रहा है, ठीक है। चलो अब थोड़ा एक अजीब सा वाला और देखते हैं। अब कितने बार ऐसे भी गिवन होगा, है ना। ये तो डरना नहीं है, इजी है, फटाफट अभी समझ लेंगे। ये 2 करेंगे फिर क्लास एंड कर देंगे ना, प्लीज। तो स्टे टिल नाउ। ये डिस्टेंस a है, ये हमारा फोकस तो वही है 0,0। y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,a, क्या बात है गाइस। और ये नीचे है तो दिस इज x इक्वल टू -a, y इक्वल टू -a, वेरी गुड। y इज इक्वल टू -a और y प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है, ये पता है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं। कोई भी एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये हो गया s, ये हो गया m, ये हो गया p। अभी sp इक्वल टू pm, sp कितना होगा, ये पॉइंट है x, y, डायरेक्ट लिखता हूं मैं x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस a स्क्वायर, है ना। ये ध्यान रखना, x माइनस 0 हो चुका है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y प्लस a, तो x तो है ही नहीं, डायरेक्टली y प्लस a √1 लिख दो डायरेक्ट, अब सबको पता ही है, होल स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर a स्क्वायर x इक्वल टू 4ay। ओ किस डायरेक्शन में खुला है, खुद देख के बताओ। लीनियर वेरिएबल क्या है, प्लस y, क्या y एक्सिस के डायरेक्शन में खुला है ना। फील है कि नहीं बताओ, अरे बताओ तो सही। वर्टेक्स 0, 0, फोकस 0,a, डायरेक्ट्रिक्स, अरे बोल दो अब, डायरेक्ट्रिक्स ये कौन सी हो गई, y इज इक्वल टू -a और y प्लस a इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स हो गई, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया। आगे 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 क्या रख दें हम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ डायरेक्ट लिख देते हैं पहले 4a, फिर एंड पॉइंट्स क्या होगा वो सीखते हैं ना। तो देखो अभी ये लेटेस्ट रेक्टम ऐसे दिखेगी। अब इसमें देखो ध्यान से देखो, x और y में से क्या कांस्टेंट हो रहा है, किससे पास हो रही है, फोकस से। तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब y कांस्टेंट है। y कितना है, a, तो यहां पर रख देते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a, x क्या आ गया प्लस माइनस 2a। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज 2a, y इज a और माइनस 2a, a। अरे ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस a है, तो कोई भी एक, अरे ये देखो ये a है, तो ये भी a है और ये भी a है, बस x चेंज होगा। दिस इज 2a, तो एक पॉइंट क्या हो गया 2a, a माइनस 2a, ये लेटेस्ट रेक्टम ऐसे कैसे दिख रही है, अरे इसमें ऐसे दिख रही है तो इसमें तो ऐसे दिखेगी ना। ओह यस गाइस, हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए ओके तो ये हो गया। अब हम लिखते हैं फोकल डिस्टेंस x प्लस ए होगा। अरे देखते हैं तो है क्या होगा, कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं ना, ऐसे कुछ तिरछा ही लेते हैं। दिस इज s, दिस इज p, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो sp इक्वल टू pm। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितना है y, ये कितना है a, तो कितना हो गया y प्लस ए, डायरेक्ट लिख दूं, वहां पे क्या था x प्लस ए, y प्लस ए, एकदम रिप्लेस हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ठीक है, चलो इजी है। अच्छा, इसके वो सब भी सोच रहे होंगे आप, 39 हो गया, अब क्या ही करूं मैं, 40 चले जाएगा, है ना गाइस, सॉरी फॉर दैट। अब तो सब चीजें बतानी जरूरी है। वर्टेक्स हो गया, सॉरी, टेंजेंट एट वर्टेक्स कैसी दिख रही है, ध्यान से देखो, ये वर्टेक्स उस पर टेंजेंट है, वो क्या है, एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। अब पूछा हमें एक्सिस कौन सी, देखो ये पैराबोला है, ये एक्सिस है, इस बार पिछली बार एक्स एक्सिस है, नाउ एक्सिस इज y एक्सिस मतलब y एक्सिस की बात करें मतलब क्या हो गया, ओहो x इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये क्लियर है, अच्छे से क्लियर है ना। लास्ट वाला बता दूं मैं, फिर हम रिवाइज भी करेंगे और एक SLQ रखेंगे और क्लास एंड करेंगे। ठीक है, चलो लास्ट वाला, जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है।
ये है, ये हमारा पैराबोला, ठीक है, इजी है। ये पॉइंट 0 कॉमा माइनस ए, दिस इज y इज इक्वल टू ए और y माइनस ए इक्वल टू 0। डायरेक्ट ही देख के बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay था, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। किस डायरेक्शन में खुला है? माइनस y, नीचे है ना, नीचे डायरेक्शन में खुला है। यस गाइस, यस, ऑल विथ मी, ऑल विथ मी, ऑल विथ मी। चलो बहुत बढ़िया, तो हम फटाफट लिख लेते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स बोल दो गाइस 0 कॉमा 0, फोकस 0 कॉमा माइनस ए, बढ़िया। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स y माइनस ए इक्वल टू 0 और y इक्वल टू ए। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, फिर एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखो यहाँ पे होंगे, कुछ डरने वाली बात नहीं है। y तो कांस्टेंट है, a हो गया 2a कॉमा a, और यहाँ पे हो जाएगा दोनों नेगेटिव, माइनस 2a कॉमा माइनस ए, सॉरी ओहो y इसका नेगेटिव है, 2a कॉमा माइनस ए, माइनस 2a कॉमा ए, माइनस 2a कॉमा माइनस ए एंड 2a कॉमा माइनस ए। फोकल डिस्टेंस सेम y प्लस ए, और कुछ तो नहीं है। टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट ये वर्टेक्स है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स x एक्सिस और y इक्वल टू 0, और लास्ट में ये हो गई एक्सिस, एक्सिस कितनी हो गई y एक्सिस और x इक्वल टू 0। चलो इजी है, ये समझ में आ चुका है, बहुत ही बढ़िया गाइस, है ना। हाँ क्लास एक्सटेंड हो गया अच्छा खासा, ठीक है, सीखा भी तो है ना आपने। चलो अरे यहाँ पे तो हम आ गए थे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने किससे स्टार्ट किया? अरे आ जाओ भाई साहब। सो ये गाइस लेट्स रिवाइज क्विकली। So this is a straight line, this is a fixed point, fixed line is called directrix, this is focus, PS equal to PM, this is E is equal to 1 for parabola, H square equal to AB. We'll apply, we'll get this as the general equation, okay. This is the distance formula, this is nothing but distance of a point from a line, okay. फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा कि दिस इज द लाइन, दिस इज द पॉइंट, ये फाइंड करो। तो हमने अप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, ईजी है, प्लीज़ देख लेना, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बहुत स्मार्ट, आप सब समझते हैं, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजीज क्या, एक्सिस, एक्सिस क्या हो गई, एक डायरेक्ट्रिक्स है, एक फिक्स पॉइंट है, और ये हमारा कर्व है। तो वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो और क्या हो, हमारे कर्व को इंटरसेक्ट करें, लाइन पासिंग थ्रू फोकस, सॉरी कर्व फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर, उसको हम क्या देंगे एक्सिस, दैट इज व्हाट वी कॉल इज एक्सिस। वर्टेक्स इंटरसेक्शन ऑफ अ पैराबोला एंड एक्सिस, एक्सिस कहाँ है भूल गए, एक्सिस ये रहा और ये रहा पैराबोला, हो जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा वो वर्टेक्स। फोकल कॉर्ड, कॉर्ड जॉइनिंग, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो। नेक्स्ट लेटेस्ट रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, ये हो गया। चलो ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर हमने बात करी, इतना हमने सॉल्व किया, आ चुका है क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला ऑलवेज ओपन इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, सॉरी एंड वर्टेक्स, और हाफ द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, ठीक है, ये हमें पता है। चलो बढ़िया, फिर वर्टेक्स फोकस a0 x माइनस ए, x एक्सिस y एक्सिस, लेटेस्ट सेक्टम परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू दिस, कैसे फाइंड किया था, दिस इज a, सब्स्टिट्यूट a हियर, ये रहा यहाँ पे a रखो तो y प्लस माइनस 2 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट DOS, डी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, कहीं से भी डाल देना से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। दिस 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर एंड 1:1 के रेशियो में रहेगा, एंड O इज वर्टेक्स इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ दैट, ठीक है। चलो y स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इंटू x और 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो बढ़िया, और ये ध्यान रखेंगे दिस इज y माइनस 0 x माइनस 0, है ना, ये आगे हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फोकल डिस्टेंस समझ में आ चुका है, x प्लस है। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी पॉइंट कर्व पे हो और उसका फोकस से बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये है a, ये x, तो a प्लस एक्स, ठीक है। मॉडुलस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, एक क्वेश्चन देख लिया। फिर हमने सेकंड y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, इस तरफ हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, वर्टेक्स फोकस माइनस ए कॉमन से रहा, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a और माइनस ए, लेटेस्ट रेक्टम कॉमन सेंस माइनस ए 2a माइनस ए माइनस 2a, ठीक है, समझ में आया। फोकल डिस्टेंस x प्लस ए, फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये थर्ड वाला हो गया हमारा, दिस इज थर्ड वाला, ठीक है। तो इसके हमने वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये सब लिख लिया है, चेंज हो जाएगा 0, a है ना, डायग्राम से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। ये हो गई हमारी लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ तो 4 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एंड्स चेंज हो जाएंगे। फोकल डिस्टेंस ये हो जाएगा y प्लस है, फोकल डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस, उसको हम बोल देंगे ये डिस्टेंस, ठीक है।
चलो डायरेक्ट ट्रिक से आएगा ना, एस पी इक्वल टू पी एम, फिर ओके ये सब चीज़ें समझ में आ गया, और नीचे हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, और ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है गाइस, बहुत बढ़िया। SLQ सरप्राइज लॉजिकल क्वेश्चन। तो आज का सरप्राइज लॉजिकल क्वेश्चन क्या है, ये है, पुराने का आंसर मैं बता देता हूँ। आई ऐसा था, A आई इज स्क्रीमिंग, आई चिल्ला रहा है, तो आंसर इज आई स्क्रीम। ओ यस गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आज का है, बस ये एक ही है, ये बॉक्स बना और ये डी लिखा है, वन वर्ड है, ठीक है, बताना है। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड ऑफ you all, those who have stayed till this last moment, you know, you are doing very good, and no one knows at the outside that you are working hard apart from your daily coaching and all. You are watching the videos and making the notes, and I assume you are feeling good. So now please let me know in the comment section if things are useful to you, and so it helped me also to get motivated to make more videos, although I am based on your feedback and everything, but then also it helps, right? Saying honestly, right? So yeah, that's how it is, and please go through this. We'll have video about standard equation of parabola, like next also, na, if we just make some changes, if we change the vertex and all, right? Because see, these are the basics for conics, right? If you'll understand all this, it would be like very easy for you, and ellipse, hyperbola ना एकदम चुटकियों में हो जाएगा, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Make sure after the class you know the drill. What you have to do is please like the video, share with someone who should watch this. You can watch this video at 1.5x है ना, 2x जिस पे भी आपको समझ में आ रहा हो, एंड सब्सक्राइब तो कर ही लिया हुआ है सभी ने, ठीक है, एंड कमेंट डाउन, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन एवरीवन, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, एंड बी स्मार्ट। यू ऑल आर वेरी 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 ऑसम, है ना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टूडल्स, आई एम योर मैथमेटिक्स प्रोफेसर ललित राघव, signing off. Bye everyone.